we understand the nature of urban development that took place in the 19th and 20th century. तो आज की वीडियो हम क्या पढ़ने वाले कि जो हमारा वसाहतवाद यानी कॉलोनिज्म एंड अर्बन चेंज, तो जो हमारा शहरीकरण वसाहतवाद और अर्बन एरिया में चेंजेशन कि उन सिटियों में 19th एंड 20th सेंचुरी में उनमें बदलाव कैसे हो गया. Okay, that particular places in the time of British rule. Okay, next what you learn the how new types of towns emerge in the colonial period. और फिर उस वसाहत यानी कॉलोनियल के टाइम में जो कुछ टाउन्स थे, कुछ बड़े बड़े सिटीज थे, वो उस टाइम कैसे उसमें शामिल हुए. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. तो here we can see some pictures are given here. So there are some particular places that buildings how they had made in that colonial time. Means we know every time there is we found some changes under the control of British rule. तो under the control of British rule कि हर वक्त हमने देखा कि कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे हुए, जैसे सिटीज़ में हुए कि बड़े बड़े सिटीज़ उन्होंने डेवलप्ड किए. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी हियर दैट सोशल कॉन्सेप्ट. ओके, दैट सोशल कॉन्सेप्ट हियर urban change. So the growth and decline of cities under the colonial regime in India indicates how British interests change over the course of time. तो हमें क्या यहाँ पे पता चलता है कि ब्रिटिश राज में वो कितने इंटरेस्ट है कि चेंज करने में इंडिया में. तो सिटीज विथ देयर concentration of people, power, wealth and politics provide evidence of the socio-cultural conditions in the colonial times. So उस टाइम उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, जैसे कि पॉलिटिक्स, people, power, wealth and the politics. So they had made such changes in under their rule, under their power. So these are some evidence. As old urban centers declined and got abandoned, new centers emerged under the British. और जो कुछ थे पुराने बिल्डिंग्स वगैरह, पुराने कुछ जहाँ सेंटर्स थे, उनको उन्होंने थोड़ा चेंज किया, मॉडिफाई किया, और मे बी वी कैन से दे हैव डिक्लाइंड, उनका नाश किया, and they built the new cities and new places. As they grew and expanded, become important sites where the British displayed their administrative, political and economic power in India. तो फिर उसके साथ उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स की जो भी उनके कुछ बड़े बड़े सिटीज़ थे वो उन्होंने वहाँ पे चेंज किया एंड डिस्प्लेड मीन्स वहाँ पे उन्होंने उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू की, उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर, तो उस जगह पे इंडिया में उन्होंने वो शुरू किया विद डेवलपमेंट ऑफ दैट न्यू cities. Okay, here we can see that building, okay, of that municipal corporation of India itself. Here we can see next, the policies of the British in India changed the entire economic, administrative and political scenario of the country. So what they had changed, so they changed the entire economic and administrative and political sides, political schemes. So destruction of the traditional cottage industry, growing commercialization of agriculture and unfair taxation policy in trade and commerce affected the socio-economic fabric of India, leading to the decline of existing urban centers. तो क्या हुआ साथ में कि जो भी हमारे इंडिया में कुछ कमर्शियल, जो भी कुछ हमारे कॉटेज इंडस्ट्री, उनको भी उन्होंने कम कर दिया एंड चेंज इनटू देम एज अ ग्रोविंग कमर्शियलाइजेशन. एक व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्होंने उनको बढ़ावा दिया, उनको चेंज किया और उसका हमारे कुछ वो अर्बन सेंटर्स कुछ उसका दुष्परिणाम हुआ. दिस
Deurbanization, however, was accompanied by the emergence of some new urban centers with flourished under the British. तो फिर के साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स की those who are the deurbanization है कुछ लॉस तो उसके साथ उन्होंने endeavored by the emergence of some new urban centers तो जो पुराने थे उनके साथ उन्होंने कुछ न्यू सेंटर्स ने कि deurbanization की द प्रोसेस वेयर a large number of people start to live cities and towns. तो फिर उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा मायने में वहाँ पे लोग रहने लगे हमें पता है बिग सिटीज वी फाउंड मेनी पीपल वाई बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज तो बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्री होती है रोज़गार मिलता है इसलिए वहाँ पे हमें लोग ज़्यादा नज़र आते हैं सो दैट इज़ द डेवलप्ड. Now students next point and that is the decline of existing urban centers and the birth of new urban centers. तो यानी क्या कि जो भी एग्जिस्टिंग जो भी पुराने कुछ अर्बन सेंटर्स थे यानी सिटीज हो गए उनका एक डिक्लाइन हो गया मतलब दे वैनिश दे डिक्लाइन and there is the birth of new urban centers new cities. Okay, so see here as the British rules initially established their control over eastern India, the impact of colonial rule could also been first in this region. तो जैसे जैसे कि ब्रिटिश रूल ने हमने देखा है कि ईस्टर्न इंडिया पे अपना धाक जमाया अपना कंट्रोल प्रस्तापित किया तो उसी समय उन्होंने जो उनका प्रभाव था वो उनके कॉलोनियल रूल पे उनके कॉलोनी पे हो गया in this region. Okay, during the early 19th century the population of cities like Decca, Murshidabad, Patna and Burdwan declined, indicating that these cities were now losing their importance. तो फिर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे कि उस समय इन 19th century the population of the cities यानी कि जो डेक्का मुर्शिदाबाद पटना एंड बुरवादान उनका एक अस्तित्व थोड़ा कम हो गया सपोज दे डिक्लाइंड एंड दे इंडिकेट दैट दिस सिटीज वेयर नाउ लूजिंग देयर इम्पोर्टेंस और फिर ये क्या दिखा रहे थे कि वो सिटीज मानो अभी अपना उनका अस्तित्व खो रहे हैं क्योंकि वह उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. सो एट द सेम टाइम कलकत्ता विटनेस रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और उसके साथ ये नजर आता है कि जो कलकत्ता शहर है वो कलकत्ता शहर बहुत ही रैपिडली वो ग्रो हो रहा था क्योंकि एज अ बिग सिटी दैट्स वाई इट्स रैपिडली इट वाज ग्रोइंग मतलब वो जल्दी से बढ़ रहा था शहरीकरण उसका हो रहा था. सो एज इट्स बिगेन टू इमर्ज एज द न्यू सेंटर ऑफ कॉलोनियल पावर इन द ईस्टर्न रीजन. तो यहाँ पे किसकी शुरुआत हो गई तो इसका एक इमर्ज यानी क्या टुगेदर colonial power and this as it is began to emerge as the new center of the colonial power और मानो कि यहीं पे कलकत्ता में colonial power का एक नया शहर we can say a new center was started. Okay, a similar development could be seen in other part of the country as well और साथ साथ ईस्टर्न रीजन दूसरे भागों में दूसरे एरिया में भी इंडिया के कुछ डेवलपमेंट नजर आई. फॉर एग्जांपल Masulipatanam and Cochin existed as important post towns in southern India prior to arrival of the British in the region. तो साथ में क्या हो स्टूडेंट्स की जो साउथ इंडिया का भाग था हमारा जिसकी मसूलीपट्टनम एंड कोचिन उन सिटीज को यानी इम्पोर्टेंट मिलने लगा. क्यों वाई बिकॉज ऑफ द पोर्ट टाउन्स वो किसके लिए फेमस थे उनको पोर्ट टाउन्स यानी कि समंदरी जहाज़ों के लिए उनका एक पोर्ट फॉरवर्ड हुआ एज टू अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द रीजन और उस तो ब्रिटिश पीपल को ऑफिसर्स को इंडिया में आने के लिए उस ईस्टर्न पार्ट में आने के लिए वो दो शहरों Masulipatanam and Cochin they are playing very important role as a port towns. Okay, a large number of artisans and merchants migrated from Masulipatanam
over time and Cochin lost its significance once टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड। फिर साथ में क्या होगा बच्चों, तो जब वहाँ से बहुत सारे लोग मछलीपट्टनम के कोचिन के that people they migrated means they moved from one place to another place when that Tipu Sultan was defeated। जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ मानो हम कह सकते कि हार गया, तो तब उस कोचिन और मछलीपट्टनम का महत्व कम हो गया। This was followed by the emergence of new urban and commercial centers along the coast, which dealt mainly with the export of Indian textile to the markets of Europe and the Middle and the Far East। तो उसका परिणाम क्या हो गया कि that was followed only by the emergence of न्यू अर्बन कमर्शियल सेंटर, उसका रूपांतर किसमें हो गया, एज अ न्यू कमर्शियल सेंटर। ओके, एंड फॉरवर्ड डी इट वॉज फेमस विथ ओनली दैट एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी कि वहाँ से इंडियन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे, यानी इसके जैसा टेक्सटाइल को इंडियन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे एंड टू मार्केट ऑफ यूरोप एंड मिडल। तो यूरोप में वो उसको एक्सपोर्ट करते थे। द डिक्लाइन ऑफ सिटीज सच एज मुर्शिदाबाद, here we can say the decline of the city Murshidabad, Decca, Masulipatanam and Cochin occurred mainly due to the economic and political reasons। तो those were the big cities, for example मुर्शिदाबाद, डेक्का, मछलीपट्टनम और कोचिन, उनका ह्रास हम बोल सकते हैं, उनका डिक्लाइन क्यों हुआ। द पर्पज इज दैट द रीजन इज दैट ओनली द ड्यू टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन। तो उनका रीजन था क्या, एक आर्थिक, एक इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड पॉलिटिक इशू था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी दैट रीजन्स। तो फर्स्ट रीजन इज गिवन हियर एज the British rulers reduced investment in the city if its economy did not suit to the British economic interests। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन ब्रिटिश रूलर्स ने क्या किया, उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, यानी कि जब उनकी इकोनॉमी को सूट नहीं हो रहा था, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उनका इकोनॉमी, उनका ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने वो इकोनॉमी बंद कर दी। This directly affected the trade that such cities had earlier engaged in। और उनका परिणाम क्या होगा कि जो सिटी पहले से उसमें काम कर रहे थे, एंगेज थे, वो उन सिटीज़ पे, उन एरिया पे उनका अफेक्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने वो अपना इन्वेस्टमेंट करना बंद किया था। दिस इज इन टर्न फोर्स द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स of these cities to shift their business activities to new cities and to trade in new items which were favored by the British। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो भी व्यापारी थे, मर्चेंट उस एरिया के, मानो उस डिक्लाइन सिटीज़ के, उनके फोर्स हो गए कि वो अपना जो पहले का ट्रेडर था वो स्टॉप करे, वो बंद करे, और दे कैन शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, दे कैन शिफ्ट देयर बिजनेस टू another cities, to new cities, and they can develop their trade as a and with new items which were favored by the British। यानी जो भी उस ब्रिटिश पीपल के फेवर में होगा, उस तरह का आइटम हो, उस तरह का वो ट्रेड शुरू करे। तो that was the one reason why these cities decline। okay, now next is we can see here as a Murshidabad had enjoyed great importance prior to the arrival of the British, mainly due to an administrative status during the rule of Nawabs in Bengal। So, in नवाब के टाइम पे, नवाब के समय पे, नवाब बंगाल, तो जो मुर्शिदाबाद था, it had its great importance in that time before British came। okay, because of its administrative status। तो उस समय उस मुर्शिदाबाद को एक एडमिनिस्ट्रेटिव का एक दर्जा था, वो ब्रिटिश लोग आने से पहले नवाब के राजकाल में। हाउएवर विद द ब्रिटिश अज्यूमिंग कंट्रोल ओवर द होल ऑफ बंगाल, द सेंटर ऑफ द पावर शिफ्टेड। और जब
ब्रिटिश लोगों ने अपनी पूरी पावर बंगाल पे हासिल की, तब उस समय उस शहर का महत्व कम हो गया एंड द पावर सेंटर हैज़ बीन शिफ्टेड। ओके, तो फिर वहाँ के पावर सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वहाँ पे चेंज हो गए। तो इंस्टेड ऑफ मुर्शिदाबाद, कैलकाटा बिकेम द सेंटर फ्रॉम वेयर द ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड द होल ऑफ बंगाल। तो इसका मतलब मुर्शिदाबाद के अलावा द ब्रिटिश पीपल दे स्टार्टेड, यानी उन्होंने कलकत्ता को महत्व दिया और कलकत्ता को उनका एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना सेंटर बना दिया फॉर द बंगाल। दिस शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मींट दैट द पीपल एसोसिएटेड विथ इट आल्सो शिफ्टेड टू कलकत्ता। और फिर इसका परिणाम क्या होगा कि जो भी लोग उस एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो उससे रिलेटेड थे, दे आल्सो शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कोलकाता। ओके, तो टू कलकत्ता, thus contributing to the decline of मुर्शिदाबाद। और यही कारण है कि वो फिर मुर्शिदाबाद का महत्व कम हो गया एंड दैट बिकेम डिक्लाइंड। ओके।